taking the most precaution, was scared of all the whole scenario. अभी ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है. This is just July, and now she's just the 40th week, and अभी भी touch wood, she's fine, and बच्चा अभी निकला भी नहीं. I mean, हुआ भी नहीं है उसको. So she was she was so petrified, just so petrified with the whole scenario. She called me and she started crying कि पता नहीं मुझे अकेले को कैसे हो गया है, and इतना ज़्यादा हो गया था that immediately she had to be under the care of the doctor and all of that. So that's when. Exactly. So yay, this is what I was also trying to say, Pooja. I'm so sorry to interrupt, but we have to start with the chapter now. But Yes. crux of the matter is कि ये दो तीन चीजें we have to keep in mind. The precaution or the medicine that you are taking, अगर कोई chronic या कोई prolonged disease चल रहा है तो, along with the the positive mindset कि हम उस fear में नहीं रहे, हमारा belief system हमको strong रखना है. that इसका मतलब ये नहीं कि बस हम हाथ छोड़ के बैठ जाएं कि हाँ मैजिक हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू हैव दैट बिलीफ ऑल्सो. मैजिक तभी होता है जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है. Can I add one thing in this? लेकिन I'll keep it to maybe next day, कल के लिए ऐसे कुछ, but yeah, I'll let you know later. Yeah, can I add one thing in this? There was a similar situation when we were doing our gratitude club ka journey, So our mentors told us that you start giving gratitude to your doctors, to your medicines, and to your whatever things you are already taking and doing for your well-being or your family's well-being. You start giving those things also gratitude, and eventually you will see the results. So you can start doing that practice as well. चलो अब हम बाकी के क्वेश्चंस और सेशंस इस बारे में है ना आफ्टर द चैप्टर एक बार कर लेते हैं. पहले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इट्स 6:30 ऑलरेडी. Yeah. है ना? Who is reading? Can someone volunteer? Ravi is saying she'll read. Dee, you can unmute yourself. कृतिका एक बार बाकी सबको म्यूट कर दो. हाँ. पूजा दी को and आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है. Thank you. पूजा दी, are you unmute? No. Yeah. Yeah, we can hear you. Yeah. Day 4, magical health. The greatest wealth is health. Health is the most. Basically, हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है. हमारा सबसे बड़ी वेल्थ हमारे पास क्या हो सकती है? वो हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हमारी अच्छी हेल्थ ही हमारी सबसे अच्छी. इवेंचुअली ये शायद एकदम से नहीं समझ में आती है बात, लेकिन ये बात ट्रू है. अगर आप नहीं हेल्दी हैं तो नहीं वेल्दी हो सकते. यस पूजा. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only thing we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. सो हेल्थ हमारी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज है. इसके बिना कुछ भी नहीं है. और यही वो एक चीज है जिसको हम सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं. और जब हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, कुछ भी होने लगता है हमें, तब हमको रियलाइज होता है कि हमारी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. उसके बिना तो हम सोचते भी नहीं है हमारी खुद की हेल्थ के बारे में. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are all well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu, and you were bedridden. When you are not well, all what you want is to feel better,
and nothing else matters other than having your health back again. So एक इटालियन प्रोवर्ब, एक इटालियन कहावत क्या कहती है कि जो अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहा होता है वो ही सच्चा अमीर आदमी है, चाहे वो उसको ये बात पता हो या नहीं हो, उसको ये बात रियलाइज होती हो या नहीं होती हो, लेकिन सच्ची तरीके से अमीर आदमी, रिच आदमी वो ही है जो अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहा है। हम हम हार्डली कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें जो हेल्थ मिली है और जो हमें एक हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स इतने अच्छी तरह फंक्शनल हैं और वो हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल होते ही नहीं है। वो हमें तब रियलाइज होता है जब एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा कोल्ड, एक छींक आ जाती है, एक जुकाम हो जाता है हमको, एक सर दर्द हो जाता है, या हम बेड पे बेड रिडन हो जाते हैं, हम ऐसा कुछ हो जाता है, तब हमें रियलाइज होता है कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन यू आर नॉट वेल, जब आप ठीक नहीं होते हो, तब आपको सबसे पहले क्या होता है, आपको सबसे पहले ठीक होना होता है और कुछ मैटर नहीं करता उस टाइम आपके लिए। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. बेसिकली हेल्थ जो है वो हमें लाइफ से एक गिफ्ट मिला है, मतलब ऐसा गिफ्ट जो आपको मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, एवरी सिंगल डे आपको मिलता रहेगा। सो इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स वी डू टू बी हेल्दी, जो हम सारी चीजें करते हैं हेल्दी रहने के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, हेल्दी खाना हो, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना हो, या कुछ भी चीजें हो, उनके अलावा जो एक चीज हमें करनी चाहिए वो है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए जो हमें ऑलरेडी मिल रही है, उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके लिए थैंकफुल होना, उसके लिए आभारी होना। Remember, whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken away from him or her. ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन अब इसको आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से पढ़ के देखिए, ठीक है, कि अगर जिसके पास ग्रैटिट्यूड है हेल्थ को लेकर, जो ग्रैटिट्यूड दे रहा है, उसको और अच्छी हेल्थ मिलेगी और अबंडेंस में मिलेगी, भरपूर मिलेगी। जो नहीं दे रहा है ग्रैटिट्यूड, उसके पास जो थोड़ी बहुत अच्छी हेल्थ है, उससे वो भी धीरे धीरे करके ले ली जाएगी। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the help you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. आप हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को जानते हो, या आप खुद भी उन लोगों में से हो जो एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग नोटिस करेंगे कि कुछ लोगों की, उनमें से कुछ लोगों की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती है। आए दिन उनको कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, ट्रबल रहता है हेल्थ से रिलेटेड। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वो थैंकफुल नहीं है उस हेल्थ के लिए, ठीक है। वो मैजिकल अपनी अपनी लाइफस्टाइल को जो है उन्होंने बहुत अच्छी बना के रखा हुआ है, हेल्दी बना रखा है, बट उन सब चीजों के साथ में हमें उसके लिए थैंकफुल होना भी बहुत जरूरी है कि हमें वो लाइफ मिली है। जब आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप जो आपकी करंट अच्छी हेल्थ है, ना सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं, बल्कि आगे की जो आपकी आज से 10 दिन बाद की, 1 साल बाद की, 50 साल बाद की जो आपकी हेल्थ है, उसको भी एक अच्छे मोशन में ले आते हैं, अच्छे फ्लो में ले आते हैं, अच्छी होने के लिए और बेहतर होने के लिए। आप देखेंगे किस तरीके से जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तब आप देखेंगे किस तरीके से
छोटी छोटी चीजों से लेके आपके छोटे छोटे जो बॉडी में कहीं पे किसी को शोल्डर में पेन रहता है, किसी को बैक में पेन रहता है, कुछ भी, चाहे पैरों में पेन रहता है या फिर कहीं पे कुछ कुछ निशान है किसी के फेस पे या कहीं पे बॉडी पे, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं सिर्फ इतनी सी चीज से। अगेन ये खुद मेरी लाइफ में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है और अभी भी कर रही हूँ। I'll give you an example. एक कल की ही बात का मैं एक एग्जांपल दूंगी चैप्टर के बाद में। As you will learn in the later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. आप आगे की एक प्रैक्टिस में भी एक लर्न करेंगे कि किस तरीके से आप डेली इस हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड देने से आप अपनी आई साइट तक भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हियरिंग एबिलिटीज को बेटर कर सकते हैं, आप अपने सेंसेस को, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, उनको भी आप किस तरीके से एक अलाइनमेंट कर सकते हैं हमारी बॉडी के साथ में, किस तरीके से आप बॉडी के एक एक फंक्शन को और बेटर कर सकते हैं। एक मैजिक की जैसे, चुटकी में मैजिक की जैसे आप देखेंगे किस तरीके से आप खुद ही कर पा रहे हैं अपने आप। Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. ठीक है, go ahead पूजा। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. So ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक ग्रेटफुल हैं अपनी हेल्थ के लिए, उतनी ही हेल्थ आपकी मैजिकली इंप्रूव होगी। आप सिर्फ बोलने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं और उसको रियल में फील नहीं कर रहे हैं, तो उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आपको अपने दिल से थैंक यू फील करने की कोशिश करनी है कि आपको जो मिला है, आपको जो ऑलरेडी इतनी अच्छी हेल्थ मिली है और आगे भी मिलती रहे, उसके लिए आपको उतनी ही लेवल ऑफ आपका जो एक दिल से जो थैंक यू निकलना चाहिए वो उतना ही स्ट्रांगली निकलना चाहिए। अगर आप किसी खराब हेल्थ से अगर आप निकलते हैं, तो आप भी सोच के देखिए कि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी, आपकी वाइटैलिटी, आपके जो थॉट्स हैं, उन सब पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। हमें एक छोटा सा जुकाम भी हो जाता है तो भी हमारी इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ने लग जाता है। हम थॉट्स ही हमारे क्लियर नहीं रहते हैं उस टाइम पे, हम इतने इरिटेटेड रहते हैं कि हम कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो सोच के देखिए कि इतनी छोटी सी चीज हमारी बॉडी में हमको इतना अफेक्ट कर देती है। Yes, Pooja? Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Wow. So, हम हमारी हेल्थ के लिए अगर ग्रेटफुल रहते हैं, तो आज अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं तो आगे फ्यूचर में हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। इस चीज की आपको गारंटी मिलती है। इस चीज के लिए आप यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आप आज ग्रेटफुल हैं किसी चीज के लिए, तो वो अबंडेंट रहेगी, भरपूर रहेगी आगे के लिए, फ्यूचर में। अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो आप पास्ट में सोच के देखिए कि कभी भी आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको आज सफर करना पड़ रहा है, राइट? सो अगर आप ग्रेटफुलनेस इस फीलिंग में रहते हैं, कृतज्ञता की फीलिंग में रहते हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो आप अपनी लाइफ में से स्ट्रेस, टेंशन, जो कि आज की तारीख में कहीं ज्यादातर बीमारियों का रूट कॉज होता है,
स्ट्रेस और टेंशन, जिसकी वजह से हम उसको भी कम कर सकते हैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड की एक मैजिकल प्रैक्टिस से। इनफैक्ट स्टडीज ने भी ये बात, साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये बात बताई है कि ग्रैटिट्यूड जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं या जो पेशेंट्स नहीं भी होते हैं, अगर वो ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं तो वो 7 साल और ज्यादा जिंदा रहते हैं एज कंपेयर टू बाकी के लोगों से। You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living a decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is the lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power of health to of of your body. सो आप देखेंगे अभी आप लोग जो सब बैठे हैं, आप लोग सब अभी अच्छी हेल्थ में हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए ग्रेटफुल रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से आज आप हेल्दी हैं। आप शायद अननोइंगली आपने किया होगा आज से पहले, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके लिए ग्रेटफुल रहे होंगे, आभारी रहे होंगे। या पूजा विटामिन ग्रेटिट्यूड, दैट इज राइट। हमने अपनी बॉडी को एक वो विटामिन प्रोवाइड करे होंगे, ग्रेटिट्यूड नाम के विटामिन हम लेते आए होंगे, देते आए होंगे, जिसकी वजह से आज जो हमको हेल्थ मिली है वो हमें मिलती रही है। सो आपको जब ये अच्छी हेल्थ मिली है, जब मिलती रहेगी और आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आप हर दिन अच्छा फील करेंगे, हर दिन आपको अमेजिंग फील होगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड। आप आपको लगेगा कि हमारी बॉडी कितनी अच्छी है। लेकिन अगर आप ऐसा फील करते हैं कि हर दिन आपको बहुत हैवी फील होता है, या फिर एक पूरा दिन को पूरा दिन को चलाने के लिए आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, या फिर आप अपनी एज से अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते, आपको लगता है आप अपनी एज से भी बड़ा फील करते हैं, तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है इस बात का कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इस पूरे प्रोसेस के पीछे रीजन क्या होता है? लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमारी लाइफ में हम हमारी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं जो हमें मिल रही होती है, और हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते हैं। सो ये सब आज के बाद चेंज होने वाला है, बिकॉज आज के बाद आप ग्रैटिट्यूड की मैजिकल प्रैक्टिस जो कि हेल्थ के लिए है, हमारी बॉडी के लिए है, उसको यूज करेंगे। The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized lines. Feel as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel grateful more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. सो मैजिकल जो हेल्थ प्रैक्टिस है जो अब हम करने वाले हैं, इसमें आप हर एक जो अभी आगे के पैराग्राफ्स आने वाले हैं, इसमें जो इटैलिक्स में एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, वो जब मैं बोलूंगी आप अपनी आईज क्लोज करेंगे, ठीक है, और फील करेंगे जो मैं बोल रही हूँ उस चीज को, और क्यों उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं, उस बॉडी पार्ट के लिए आप ग्रेटफुल हैं, वो आपको साथ में फील करना है। क्यों, रीजन आपको फील करना है साथ में। और आंखें बंद करके आप लोग ट्राई करके देखिएगा। हर 3-4 पैराग्राफ्स आएंगे अभी आगे के, पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जो लाइन आएगी उसमें आप आईज क्लोज करके उसको फील करिएगा। जितना ज्यादा आप डीपली उसको फील करेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड डीपली दे पाएंगे, और उतना ही रिटर्न में आपको उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड की जगह मैजिक रिसीव होगा। जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आपको उतना ही मैजिक रिसीव होगा। यस पूजा। सो नंबर 1 पैराग्राफ इज दिस। इसकी जो लास्ट लाइन आएगी मैं आपको बता दूंगी पहले ही, आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिएगा उस टाइम पे। Think about your legs and feet.
They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. सो आप सबसे पहले स्टार्ट करिए, आप चाहे तो अभी भी आइज क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले सोचिए अपने पैर और अपने फीट के बारे में। सोच के देखिए कि यही वो बॉडी पार्ट है जो हमारा मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे हम ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सोच के देखिए यही वो बॉडी पार्ट है जिससे हम हमारी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस इन द सेंस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। हम खड़े हो सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, कार ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम उससे चल सकते हैं। कितना जरूरी है कि हम हमारे पैरों पे चल सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ये, कितना ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम अपने पैरों से चल सकते हैं। हमारे जो पैर हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम घर में कहीं पे भी जा सकते हैं, हम बाथरूम में जा सकते हैं, किचन में, बेडरूम में, हम हमारी कार तक जा सकते हैं, हमारी कार को ड्राइव कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, हमारे आसपास के किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं पे भी जा सकते हैं। आप सोच के देखिए आसपास की किसी स्ट्रीट्स पे कुछ काम से कुछ भी है, हम वॉक कर सकते हैं। हमें अगर कुछ भी और नहीं है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो पैर तो है। कितनी अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर योर लेग्स एंड फीट एंड रियली मीन इट। से थैंक यू, आपको बोलना है मेरे साथ में, मैं अपने पैरों के लिए, प्लीज रिपीट करिए, मैं अपने पैरों और फीट के लिए मैं बहुत अपने कृतज्ञ हूं। मैं अपने पैरों और उसके पीछे का रीजन बोलिए साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूजा नेक्स्ट प्लीज। Think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or a computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. सो अब आपको सोचना है अपने हाथों के बारे में। हमारे आर्म्स जो यहाँ से लेके हमारे आर्म्स हमारी फिंगर्स तक आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना है। आप सोच के देखिए कि दिन भर में आप कितनी चीजों को उठा पाते हैं, कितनी चीजों को होल्ड कर पाते हैं अपने हाथों में, कितने एक तरह से बहुत मेजर टूल है ये हमारी बॉडी का, हमारे पूरे ह्यूमन सिस्टम का। पूरे दिन हम इसको कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट काम में लेते हैं, चाहे वो हम कुछ लिख रहे हो, हम कुकिंग कर रहे हो, हम खाना खा रहे हो, हम फोन पे बात कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, हम शावर ले रहे हो, हम तैयार हो रहे हो। पूरा दिन भर आप सुबह से लेके सोचेंगे रात तक अगर सोचेंगे तो न्यूमरस थिंग, हजारों चीजें आपके दिमाग में आएंगी जिससे आप अपना हाथ को यूज में लेते हैं, अपने आर्म्स को लेते हैं यूज में। विदाउट इन हाथों के बिना आप सोच के देखिए आप किसी और पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर ये हाथ नहीं है तो। सो अगेन क्लोज योर आईज एंड बी थैंकफुल फॉर योर हैंड्स, फॉर योर आर्म्स एंड फॉर योर फिंगर्स। मैं कृतज्ञ हूं, मेरे साथ में रिपीट करिए, मैं कृतज्ञ हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं थैंकफुल हूं मेरे आर्म्स के लिए, मेरे हाथों के लिए, मेरी फिंगर्स के लिए। और उसके बाद उसका रीजन दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूजा। Think about your amazing senses.
Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drink. So आप सोच के देखिए, जो आपके सेंसेस हैं, हमको जो 5 सेंसेस मिले हैं, उनमें से जो एक सेंस है वो है टेस्ट का स्मेल, आई मीन टेस्ट का सेंस। उसके बिना वो हमें पूरे दिन भर में जब हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो हमें कितना प्लेजर, कितना अच्छा फील होता है, सिर्फ वो कहाँ से आता है? वो हमारे सेंस ऑफ टेस्ट से आता है, क्योंकि हम टेस्ट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, जब आपको कोल्ड हो जाता है तो आपका टेस्ट भी चला जाता है, तब हमें सब कुछ कितना फीका लगता है, हमें कुछ भी खाना ही अच्छा नहीं लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा एक कुछ डिग्री तक हमारा सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो कम हो जाता है उस टाइम पे। तो उसके बिना हमारा फूड, हमारा ड्रिंक कितना कितना ब्लैंड, कितना बेस्वाद लगता है उस टाइम पे। सो क्लोज योर आईज वंस अगेन एंड बी थैंकफुल फॉर द अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट यू हैव। इतना अच्छा टेस्ट का सेंस मिला है हमें। सो मैं उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना अच्छा सेंस ऑफ टेस्ट मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके पीछे रीजन बताइए, प्लीज डू इट। यस पूजा। Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life: flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it's cooking, a fire burning on the winter's night, the air on the summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. सो हमारा जो नेक्स्ट सेंस है वो है स्मेल करने का, जो हमें नोज से मिलता है। आप सोच के देखिए कि अपनी लाइफ में कितनी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं, कितनी अच्छी खुशबू है जो हम पूरे दिन भर में फील करते हैं। चाहे वो फ्लावर्स हो, नेचर हो, गीली मिट्टी की खुशबू हो, साफ बेडशीट्स की एक फ्रेग्रेंस हो, अच्छे परफ्यूम्स की खुशबू हो, डिनर जब वो बन रहा होता है उसकी हो, जब एक फायर आग जब जल रही होती है एक विंटर नाइट पे, उसकी वो स्मेल हो, किसी भी चीज की, चाहे वो एक घास की अच्छी खुशबू हो, कुछ भी हो, तो वो उन सब चीजों के लिए आप कितना अच्छा उस टाइम फील करते हैं। वो एक सेंस ऑफ स्मेल के लिए आप थैंकफुल होकर देखिए, अपनी आंखें बंद करिए एंड फील द वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल दैट यू हैव। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल दैट आई हैव। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। आप भी फील करके देखिए रीजन के साथ में। Think about the miracle. Yeah, if you If you didn't have the if you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug, and to feel the touch of the hand from one human being to another is one of the most precious things in life. सो नेक्स्ट हमारा जो सेंस है वो है टच करने का, फील करने का। तो आप अगर आप इस चीज को फील नहीं कर पाते कि गर्म और ठंडे में आप फर्क नहीं कर पाते, या सॉफ्ट और शार्प चीज में आप फर्क नहीं कर पाते, स्मूथ और रफ चीजों में आप फर्क नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आप उन चीजों को फील ही नहीं कर पाते, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीजों को आप फील ही नहीं कर पाते, आप फिजिकली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने लव को, या फिर आप रिसीव भी नहीं कर पाते किसी और से। सो जो हमारा सेंस ऑफ टच है, जो हमको ये सेंसेस, 5 सेंसेस में से एक सेंस जो टच का मिला है, वो हमें ये भी अलाउ करता है कि हम हमारे जो लव्ड वंस है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, फैमिली, पेरेंट्स, कोई भी हो, उनको एक हग भी दे सकते हैं। हग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंस ऑफ टच। वहां पर हम टच करके उसको फील कर रहे हैं, जिससे हम एक अश्योरेंस मिलता है उस पर्सन से कि हाँ, ये पर्सन हमारे लिए है। तो सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक ये सेंस है। अपनी आंखें बंद करिए और फील करके देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेंस है हमारे लिए, और उसके लिए थैंकफुल होइए। टेक अ मिनट।
Yes, Pooja. Think about the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends, read printed books, newspapers, and emails, watch television, see the beauty of nature, and, most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do. You will appreciate your eyes. सो आप सोच के देखिए, जादू, एक आंखों का जादू सोच के देखिए कि जो आपको अलाउ करता है, आपको इस चीज के लिए परमिशन देता है कि आप अपने अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को आप देख सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप ईमेल्स पढ़ सकते हैं, आप अपने आसपास के ब्यूटीफुल नेचर को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए अगर आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध देंगे और जो नॉर्मली आप अपने लाइफ में जो काम करते हैं वो करके देखिए, तो आपको शायद रियलाइज हो जाएगा कि हमारी आईज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके बिना हम कितने अधूरे हैं। सो एक मोमेंट का टाइम लीजिए एंड बी थैंकफुल फॉर योर आईज। इतनी अच्छी आपको आईज मिली है, इतना अच्छा आपको विजन मिला है, उसके लिए थैंकफुल होइए रीजन के साथ में। Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voices so that you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank. आप अपने इस सेंस, जो सुनने की हमारी शक्ति है, जो हम ईयर्स को यूज करते हैं सुनने के लिए, उसके बारे में सोच के देखिए कि हम हमारी खुद की आवाज सुन सकते हैं। सबसे पहले तो हम दूसरे लोगों की आवाज सुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। हमारी सुनने की शक्ति के बिना ना तो हम फोन यूज कर सकते हैं, ना हम म्यूजिक सुन सकते हैं, ना हम हमारे जो लव्ड वंस हैं उन लोगों से बात कर सकते हैं। तो या फिर जो भी और, चाहे चिड़ियाओं की चहकने की आवाज हो या फिर नेचर में और किसी चीजों की आवाज है, वो हम नहीं सुन सकते हैं। सो बी थैंकफुल टू योर ईयर्स, टू दिस सेंस, अमेजिंग सेंस ऑफ हियरिंग। And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. एंड इन सभी सेंसेस को यूज करने के लिए हम बिना हमारे ब्रेन के हम कुछ भी ये सारी जो सेंसेस हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं, जो एक सेकंड में मिलियंस, लाखों करोड़ों मैसेजेस हमारे सेंसेस को दे देते हैं, जो हमें रियलाइज भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हम इतना कुछ सेंस कर पाते हैं, सारी सेंसेस को यूज कर पाते हैं और एक्सपीरियंस कर पाते हैं लाइफ को एक बेटर तरीके से। ये जो हमारा ब्रेन है, ये कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकती है, इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। सो बी थैंकफुल टू द ब्यूटिफुल ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन और माइंड के लिए थैंकफुल होइए, जो कि एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है आपका। Think about the trillions of cells working unceasingly, 24/7 for your health, body, and life. Say thank you, cells. Think about your life-sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. सोच के देखिए हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, 24/7, 24 घंटे दिन रात वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी को सही रखने के लिए। उन बॉडी के सेल्स को थैंक यू बोलिए।
वो जो हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, हमारा जो लिवर है, हमारे जो हमारा इंटेस्टाइन्स है, हमारे जो भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा ब्लड सप्लाई है, हार्ट के बारे में आगे आएगा, लेकिन जो हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली फिल्टर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, एवरी डे एवरी सेकेंड जो ये सब काम कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि वो उनमें से एक चीज ने भी फंक्शन करना बंद कर जाता है तो आपको पता है उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं. सो फील करके देखिए, दिल से फील करके देखिए, उन सबको थैंक यू बोलिए, उन सारे ऑर्गन्स को थैंक यू बोलिए जो ठीक तरीके से अभी वर्क कर रहे हैं. But more miraculously than any sense, system, function, or other organ in your body is the organ of your heart. कुछ Your heart, loudly, a little loudly. but more miraculously than any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of our heart, of your heart. Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. बट बाकी सारे सेंसेस, जितने सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे जितने फंक्शंस एंड ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उन सबसे ज्यादा जरूरी सिस्टम, जो सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्गन होता है, वो होता है हमारा दिल, हमारा हार्ट, जो कि हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है, हमारे एवरी ऑर्गन को गवर्न करता है. वहीं से हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड पंप होके प्योरीफाई होता है, वही हमारी लाइफ को बढ़ाता है आगे. वो बंद हो जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है, राइट? सो आप उस हार्ट के लिए थैंकफुल होइए. इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट है, इतना हेल्दी हार्ट है आपको भगवान ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है. सो बी थैंकफुल फॉर दैट. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big, bold letters. Do I read it? या The gift of health is keeping me alive. सो आज का आपका जो टास्क है वो यही है. आपको क्या करना है, आपको एक पेपर या फिर एक प्लेन कार्ड लेना है और उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में आपको क्या लिखना है? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये आपको बड़ा बड़ा एक पेपर में लिखना है आज. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at the desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. सो आपको ये कार्ड अपने साथ में रखना है आज, और ऐसी जगह पे लगाना है, ऐसी जगह पे उसको स्टिक कर देना है जहां आपको लगता है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं. चाहे वो आपकी ऑफिस की डेस्क हो, किचन का सामने की वॉल हो जहां आप कुक करते हैं, या जहां भी आप मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि आप उस जगह से ज्यादा बार निकलते हैं उसके सामने से, वहां पर आप इस पेपर को आज वहां पर आपको स्टिक करना है. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. और आज आपको 4 अलग अलग टाइम पे, सुबह, शाम, दिन, रात, या फिर किसी भी और टाइम जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उसको आपको इस लाइन को पढ़ना है. बहुत धीरे धीरे एक एक वर्ड को एट अ टाइम आपको पढ़ना है, उसको फील करना है. फील करने के साथ में आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है, थैंकफुल होना है दैट आपको ये गिफ्ट मिला है हेल्थ का. इतनी सारी चीजों का अभी जो हमने पढ़ी हैं, उनके लिए आप ग्रेटफुल होइए. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee
that it comes to get better with increasing energy and zest of life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. So Neetu and Sarika, this one is specially for you guys. आप इसको समझिए ठीक से कि आप अपनी हेल्थ के लिए अगर ग्रेटफुल हैं तो मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा. ये साथ में गारंटी देता है कि आप लाइफ भर में आप में वही एनर्जी वही जेस्ट आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी भर रहेगा. अगर ग्रैटिट्यूड की मैजिकल प्रैक्टिस को हम साथ में जो हमें जरूरी नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर हमें जरूरी पड़ रहे हैं वो, या फिर जो अभी करंट सिनेरियो की अगर बात करें तो हमें जो प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, इनके साथ में अगर हम मैजिकल प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, हेल्थ की मैजिकल प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, तो आप देखेंगे पूरी जिंदगी में आपकी जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहेगी. एक रेवोल्यूशन आ जाएगा आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ में. और जो हमारी रिकवरी रेट्स है, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसकी जो रिकवरी रेट है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. आप ऐसी हेल्थ देखेंगे जो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी. थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग द चैप्टर फॉर ऑल ऑफ अस. मैं क्विकली आपको रिमाइंड कर देती हूँ आज आपको क्या करना है. आई होप आप सब लोग ब्लेसिंग्स लिखकर आए होंगे, अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखकर आए होंगे और उसके साथ में आपने उनका रीजन भी दिया होगा और साथ में रीजन देने के बाद आपने पूरी लिस्ट को एक बार वापस पढ़ा होगा और उनके लिए थैंक यू बोला होगा. आज आपको क्या करना है, एक पेपर या एक कार्ड पे आपको लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. बड़ा बड़ा आपको ये लिखना है और ऐसी जगह इसको लगा देना है जहां पे दिन में आप इसको आते जाते देख सको, इजीली देख सको. और मिनिमम आपको 4 बार इस लाइन को एक एक वर्ड धीरे धीरे पढ़ना है, उसको समझना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिल से फील करना है. आप चाहें तो अभी जो हमने चैप्टर में एक एक सेंसेस हमारे ऑर्गन्स के बारे में सोचा है, आप भी वही वापस सोचकर उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं. रात में सोने से पहले अपनी मैजिक रॉक एक्टिविटी करना ना भूलें. जो भी दिन भर की अच्छी चीजें हुई हैं उनको याद करें और जो उनमें से सबसे बेस्ट चीज हुई है उसके लिए स्पेशली थैंक यू बोलिए और उसके बाद सो जाइए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी. एंड मैं जो आपको कह रही थी चैप्टर के बीच में कि मैं आपको एक चीज बताऊंगी चैप्टर के बाद, तो मैं आपको बताती हूँ कि कल मैं कुछ काम कर रही थी किचन में एंड कुछ बहुत बॉइलिंग वाटर मेरे हाथ के ऊपर गिर गया. आई डोंट नो आपको मेरा हाथ दिख पा रहा है कि नहीं, बट आर यू एबल टू सी? कृतिका एक बार स्क्रीन बंद करना. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू सी इट और नॉट. ठीक है, तो वो पानी मेरे ऊपर गिर गया, एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर था. एंड मुझे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते ना तो मुझे ऐसा लगता कि आज तो मेरा हाथ पूरा फूल जाएगा, इतना बड़ा सारा हो जाएगा, क्योंकि वो इतना गर्म पानी था, एकदम पानी उबला हुआ पानी था और वो इतना सारा मेरे हाथ पे गिर गया. हाथ में जलन होती है बहुत ज्यादा जब इस तरीके से कुछ हो जाता है. ट्रस्ट मी, मुझे भी जलन हुई, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, हाउ थैंकफुल आई एम फॉर माई हैंड्स कि मैं इनको यूज कर पाती हूँ. मैंने इसका मतलब ये नहीं कि इस पे ऑइंटमेंट नहीं लगाया या इस पे आइस नहीं लगाई, इसको रनिंग वाटर में नहीं रखा या मैंने कुछ भी इसके लिए प्रिकॉशंस नहीं लिए. ऐसा नहीं था कि मैंने ये सब नहीं किए, लेकिन मैंने इन सब के साथ में बहुत सारा अपने हाथों को ग्रैटिट्यूड भी दिया कि मेरे इतने सुंदर हाथ हैं, इनसे मैं इतना कुछ काम कर पाती हूँ. और आज आप देखिए, आज आपको निशान भी ठीक से विजिबल भी नहीं होगा, अभी तो 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं और ये इतनी बड़ी सारी जगह पे मुझे हुआ था, दिख रहा होगा यहाँ पर. सो इट्स ब्यूटिफुल, इट्स मैजिकल. आप ट्राई करके देखिए, आप दिल से जब आप फील करेंगे ना, आपको खुद को रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि ये ट्रू है. एनी क्वेश्चंस अबाउट द चैप्टर? और आप लोग कल का आप लोगों ने टास्क किया या नहीं किया? कि तो एक बार सबको अनम्यूट कर दे. कल का टास्क सबने किया या नहीं किया?
Yes, I did. हाँ, उपासना, you were the first one to do it. Thank you. तो बहुत मजा आया करके, बहुत मजा I'm आया। sure. I'm sure. Okay, great, प्रीति दी। प्लीज आप इनको करिए। ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जो आपको हो सकता है लगे कि यार ये क्या है, ये भी कोई करने की चीज है, बट प्लीज करके देखिए, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज 1 महीने बाद आप कहेंगे कि ये क्या था, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, हमारे साथ तो कुछ भी मैजिक नहीं हुआ। वो तभी होगा जब आप ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स जो इसमें एवरीडे दिए हुए हैं, आप उनको करेंगे, दिल से करेंगे। और डे 0 का असाइनमेंट का क्या हुआ, वो 50 आप लोगों ने टॉप 50 ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे या नहीं लिखे? बिकॉज अब उसके आगे का असाइनमेंट है उसी से रिलेटेड। 50 तो नहीं लिखे, बट जितने पॉसिबल हुए उतने लिखे। हाँ, मतलब ऐसे ठीक है, काउंट हाँ, वो किया। दैट्स ओके। अगर आपने 20 भी लिख ली हैं तो इट्स फाइन, क्योंकि अब जो आगे का असाइनमेंट है वो उसी से रिलेटेड है, वो उसी से इंटर रिलेटेड उसमें असाइनमेंट ऐड है ऑन जो मैं कर दे नहीं। सकते हैं ना टाइम टू टाइम? हाँ, ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा उससे पहले पहले आप ऐड ऑन करने की कोशिश करिए, क्योंकि कल मैं वो आपको दूसरा असाइनमेंट दूंगी उसी से रिलेटेड। सो प्लीज, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है 50 टॉप 50 ड्रीम्स एंड डिजायर्स, वो प्लीज आज टाइम निकाल के वो आज आप कर लेना, क्योंकि कल का जो टास्क है वो फिर आपका बहुत पेंडिंग हो जाएगा, वो उसी से रिलेटेड है। सो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, आज आप कर लेना। I wanted to ask something regarding that, Astha. Yes, please. Yeah. So sometimes, like, I have written quite a few. I mean, I've added onto the list from the time you asked us to do that. But sometimes I just feel that life has given me so much, and I feel guilty asking for so much else from life, and I just feel that I'm not giving gratitude for what I currently have by asking so much more from it. And plus, I just feel that sometimes, especially for material things, I just feel that at the same time I'm very grateful for what I have, but I keep asking more from life. So it's okay. You know what? You don't have to feel. एक तो ये जो guilt, fear, these are all considered jealousy, guilt, fear, any kind of negative term, any kind of negative emotion. सबसे पहले तो आप इसको निकालना छोड़िए। Universe इतना बड़ा है, it's so big that हमें नीचे भेजा ही इसीलिए गया है कि आपको जो चाहिए आप मांगो, बट आपको मांगना तो पड़ेगा, चाहे वो मटेरियल चीजें हो या नहीं हो, चाहे वो मटेरियल डिजायर्स हो या नहीं हो, चाहे वो सिर्फ एक अच्छी हेल्थ ही क्यों ना हो, एक अच्छा इम्यून सिस्टम ही क्यों ना हो, आप उसको मांगो। आपको एक पर्टिकुलर बॉडी वेट चाहिए, तो आपको वो आपकी डिजायर है या नहीं है? वो आपकी डिजायर्स है। ये नहीं कह रही कि डिजायर्स नहीं है, डिजायर्स बहुत है, बट उन डिजायर्स को मांगने के लिए आई फील कि उधर से मैं इतना ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ कि मेरे पास ये सब है, मेरे पास ये सब कुछ है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट एट द सेम टाइम मैं इतना सब कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि लाइफ मुझे और दे। See, it's not about expecting from life. It is about having a fulfilled life. जो we are not, after all, we are not saints. हमें life को continue करने के लिए हम दोनों चीजें simultaneously कर सकते हैं। हम grateful भी हो सकते हैं जो हमारे को already मिला है उसके लिए, और हमें जो आगे हमारी लाइफ जैसी चाहिए उसके लिए हम अपने आप से अपना बिलीफ सिस्टम तो बनाएंगे, हम उसके लिए कुछ स्टेप्स तो लेंगे ना। ये थोड़ी ना है कि हम यहाँ बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाएगी, लेकिन जब हम उसको लिख लेते हैं, हम उस चीज को एक्नॉलेज कर लेते हैं ना कि हमें लाइफ से आगे क्या चाहिए, तो थिंग्स बिकम रियली इजी। थिंग्स बिकम, हम और उस चीज को लेके फोकस हो जाते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको इम्यून सिस्टम अच्छा चाहिए, लेट्स से, तो ऑटोमेटिकली जब आगे के जो अभी असाइनमेंट्स आएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपनी इम्यून सिस्टम पे फोकस करोगे। एंड जो आगे की अभी प्रैक्टिसेस आएंगी ना, वो हम उन टॉप 50 पे कॉन्सेंट्रेट वैसे भी नहीं करेंगे, हम उनमें से 5 या मैक्सिमम 10 को पिक करेंगे और सिर्फ उन पे फोकस करेंगे।
तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक साथ तो वैसे भी हम 50 चीजों पे फोकस नहीं कर सकते, तो हम किसी के साथ भी जस्टिस नहीं करेंगे अगर हम करने की कोशिश भी करेंगे तो हम उनमें से टॉप 5 या टॉप 10 को पिक करेंगे और सिर्फ उन पे अपना फोकस डालेंगे, और ट्रस्ट मी इट वर्क्स। Got it. So why ऐसा नहीं that's है, what I was saying. It's not that I don't have the desires. I do. But ऐसा नहीं है कि आप दोनों चीजों पे एक साथ वर्क नहीं कर सकते, या एक तरफ तो आप थैंकफुल फील कर रहे हैं और एक तरफ आप मांग रहे हैं, तो ऐसा आपको फील नहीं करना है। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट टू आस्क द यूनिवर्स, द ऑलमाइटी। अगर आप उनसे ही नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे आफ्टर ऑल? भगवान भी सोचेंगे कि इसको कुछ चाहिए ही नहीं, अपनी लाइफ में कंटेंट है, इसको हेल्थ भी मिला हुआ है, इसको वेल्थ भी मिला हुआ है, सब कुछ है। So it's okay, हम वही yes right, so हम वो भगवान से ही तो मांगेंगे जो हमें चाहिए। वो जरूरी नहीं है वो मटेरियल चीजें ही हो, इट्स रियली नॉट नेसेसरी कि वो मटेरियल चीजें ही हो। And I don't think so there is any way that you should be guilty. यूनिवर्स में भरपूर है, अगर हमने नहीं मांगा तो वो किसी ऐसे इंसान को मिलेगा जिसको शायद नहीं मिलना चाहिए था, एंड वो उसका मिसयूज करेगा। तो इट्स बेटर बिकॉज वी कैन यूज इट better way, we are capable of that, so we should ask and we should get it. sorry, हमेशा I'm मुकेश adding अंबानी something. का एग्जाम्पल सोचने का, अगर उसके पास सब कुछ है, अगर वो फिर भी मांगे जा रहा है तो उसको और मिले जा। नहीं जी, जी आपको और गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलेंगी। So funny. बस this is our limiting belief actually. It I is, want to add something more to this. एक छोटा सा ही लेते हैं, we hit a store, है ना? तो क्या उठाते हैं हम वहाँ पे, जो हम रेगुलरली उठा रहे हैं। So the same thing it is. Again and again when we choose, when we pick good health, it is not that we're feeling guilty for it. It is because we really want it more and more from it. Health मतलब nutrition है। छोटा सा स्टोर का एग्जांपल लेते हैं, वी आर वेरी फ्रीक्वेंटली पिकिंग सम थिंग्स, हम हमेशा जाकर के वही लेते हैं, या अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाते हैं, वी चूज व्हाट वी एक्चुअली लाइक ईटिंग फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट, एंड इट इज नॉट दैट यू आर गिल्टी फॉर इट एवरी टाइम कि इसके पास में 100 सामान है बट हम उठाते ही 3 हैं। इट इज व्हाट वी लाइक। सो चूजिंग एंड पिकिंग व्हाट वी लाइक इज नेवर फीलिंग गिल्टी फॉर। अपने खुद के एग्जाम्पल में भी ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम हेल्थ चूज करते हैं, वी आर रिस्पेक्टिंग इट मोर। अगर हम अपनी रिलेशनशिप चूज करते हैं, वी आस्किंग फॉर मोर बेटर रिलेशनशिप, वी एक्चुअली रिस्पेक्टिंग इट एज वेल। ग्रीडी होना अलग चीज है, एंड आस्किंग फॉर इट, पॉलिशिंग इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। True. No, you're right, Pooja. What I feel, I might have chosen a wrong word. Instead of guilty, I probably feel a little greedy asking for those things. That's what I should have said. कि मेरे पास यार इधर से अच्छी हेल्थ है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मेरी हेल्थ मुझे अच्छी मिले। हाँ, अगर हम अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, देन इट इज ग्रीड। बहुत इंपॉर्टेंट। कब ये आता है ग्रीड? What we have, we don't care. That's when the greed, वो level of greed comes in us. But what we have, we love it, love it, love it, and we're asking more for it. We get more. We just get more. वो अपना जो present situation है, अपना current life जो है, उसको respect करना बहुत जरूरी है, so that we can even ask for more from it. I think. Okay. So thanks, Pooja. Thank you. Okay. प्लीज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग वो जो 50 ड्रीम्स एंड डिजायर्स वाली लिस्ट है, प्लीज आज कर लीजिए, सो दैट कल दूसरा उससे रिलेटेड जो टास्क है वो हम कर सकें। और मैं नहीं चाहती कि वो जो बाकी साइमल्टेनियसली जो टास्क चलेंगे वो 30 डेज में ओवर ही ना हो पाए आपके। सो प्लीज कर लीजिए। यस, आई नो इट्स 7:20. You can leave the chat if you want to. And there's one more thing, ये एक्सरसाइज ना बहुत ही सोच समझ के ऑथर ने बनाई है। For one day one practice, we really need to do it one day one practice. हम ऐसा नहीं कि यार एक साथ 2-3 इकट्ठे कर लेंगे, वो ना रिजल्ट्स नहीं देगा आपको अगर आपने इकट्ठे सारी एक साथ करने की कोशिश की। तो प्लीज डू इट, जो जिस दिन की एक्सरसाइज है उतना ही उस दिन का करके प्लीज फिनिश। मुझे एक चीज पूछनी है, जो हमने कल टास्क किया और फोटोग्राफ वाला, वो मीन्स अब ओवर हो गया है, फोटोग्राफ को हम वापस उसके प्लेस पे रख सकते हैं या इसी को कंटिन्यू भी करना है?
आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, आप अलग अलग लोगों के साथ भी कर सकते हो, बट आप चाहो तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो. सो इट्स टोटली योर चॉइस. उसमें लिखा हुआ भी है, ये चैप्टर के एंड में आपने पढ़ा हो तो, कि आप इसको अलग अलग लोगों के साथ, एक ही पर्सन जिसके साथ आपने कल किया है उसी के साथ में आज भी कर सकते हो, एवरी डे कर सकते हो, जब तक आपका मन करे तब तक आप कर सकते हो. इट्स टोटली योर कॉल. मिनिमम था वो 1 तो आपको करना था, दैट वाज मिनिमम टाइम. Chalo, I think we are done. We are done for the day, and I'm so thankful and grateful to you all that you guys came and मेरी blah 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 सुनने के लिए. Thank you so much. यार हम पूरे Have a दिन वेट करते wonderful हैं cash खाने rich का. day. Your blah 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 is Yes, therapeutic you. for us throughout the day. Thank you so much, Pooja, and thank you so much, Asta. Thank And you everyone. have a good Have day, a all of you. wonderful smiling day. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thanks everyone. Thank you. Thank you. Thank you.